Petrotrade is a private limited company incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in a real estate business and is working as an agent for DHA Islamabad to provide land to DHA Islamabad for its housing projects through sale, purchase, exchange, etc. from the respective landowners, for which a written contract has been signed between DHA Islamabad and Petrotrade, which shall be read as an integral part of ये एग्रीमेंट कहाँ दिखाइए? ये हमारे पास नहीं है, ये DHA के पास दिखाइए। सर इसके साथ तो नहीं हमने लगाया। छुपा रहे हैं ना? नहीं सर, वो लगा देता हूँ। नहीं, क्यों लगाएंगे? 2 महीने आपको दिए थे लगाने के लिए। सर जो रेलेवेंट यही था। रेलेवेंट था ना, आपने इस एग्रीमेंट में इसका तस्करा है। सर जो आपने क्यों छुपा रहे हैं? नहीं सर, ये ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट रेलेवेंट था, वो लगाया मैंने। आपने फैसला करना है, हमने करना है। सर वो मैंने आपको हुक्म दिया था हम ये फाइल करें चीजें, ये आपने छुपाया है। नहीं सर, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये आपने छुपाया है। नहीं सर, ये लगा देता हूँ मैं भाई, लगा देता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर। किधर कौन आया डीएचए की तरफ से? सर मैं डीएचए की तरफ से, सर मैं ही। भाई उनका मुलाजिम कौन आया है? मुलाजिम कोई नहीं आया, मैं आप कौन है फिर? मैं सर उनका काउंसिल हूँ। जी, तो ये तो आपकी खुफिया एग्रीमेंट है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो उसकी बात क्या करें? अच्छा, दूसरा एंड वेरेस पढ़िए। integrated part of अच्छा आगे पढ़िए। for transaction made by DHA Islamabad. भाई आगे पढ़िए ना। All 3 parties. एंड वेरेस दूसरा सर, and whereas Messrs. Barrier Town Private Limited is a private limited company incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in the business of development and establishment of various housing scheme projects, and for the said purposes has purchased and is a lawful owner in possession of thousands of canals of land in different revenue estates of Tehsil and district of Rawalpindi and Islamabad. Mr. Malik Riaz Hussain, the chief executive of the company, is fully empowered and authorized to sign and execute this agreement on behalf of the company-wide resolution dated 23rd August 2007, passed by the board of directors in favor of Malik Riaz Hussain. And whereas DHA Islamabad has been established under ordinance such and such of 2005 and re-promulgated from time to time, being represented by its administrator Brigadier Iftikhar Ali Khan, who is fully authorized to enter into the sale agreement by virtue of aforesaid ordinance. Whereas ये एक सेट है ना, कई सवाल उठ जाते हैं ना। Thousands of canals, कोई तफसील नहीं है। दूसरी बात, आप हैं, आपका रोल है आमीन के तौर पे, आप अमानत है आपके पास, आप अपनी अमानत आगे कैसे दे रहे हैं? तीसरी बात, Ordinance 2 of 2005, which has been re-promulgated from time to time, is this legal? Re-promulgation of ordinances? सर उस वक्त तो हो रही थी। आपसे नहीं पूछ रहे ना, इनसे पूछ। Re-promulgation of ordinances। सर ये तो DHA से रिलेटेड है, क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस है। कानूनी सवाल पूछ रहे हैं। Re-promulgation of ordinances, is it allowed? ऐसा नहीं, अगर असेंबली फंक्शनल है तो फिर भाई re-promulgation फैसले ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। तो re-promulgation of ordinance, अभी तक ये promulgation पे चल रहा है या एक्ट बन गया? नहीं, एक्ट बन गया। कब बना? एक्ट बन गया 2013 में। 13। तो ये भी तकरीबन ये भी डाइसी एग्जिस्टेंस थी उस वक्त। चलें आगे बढ़े सर। And whereas the company is a lawful owner in possession of land free from all encumbrances whatsoever, measuring approximately 3,407 canals. You are not a lawful owner. Absolutely wrong. You have been given this land for onward giving, distributing to the allottees. Sir. You are not the lawful owners. पता नहीं कहाँ से आप बन गए lawful owner इसके। सर वो कर दी थी हमने, जी सर, दिए थे उनको, प्लॉट्स दे दिए थे, जो कि मर्जर एग्रीमेंट है उसमें ये मेंशन है, ये सारी चीजें। देखिए ना, दुनिया देख रही है सर, मगर ये चीजें नहीं नजर आएंगी ना। स्टैम्प ड्यूटी जो कलेक्ट करता है, ना रजिस्ट्रार को, ना FBR को, वो आंखें उनकी बंद होती हैं ऐसे मामलों में। एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन सर वो सारी फीस पे होती हैं। जो हमारी फेवर में म्यूटेशन है हमने पे की है, जो इनकी फेवर में म्यूटेशन थे वो उन्होंने पे की। वो तो सर सारी जो स्कीम ऑफ म्यूटेशन की जो बात करेंगे ना, वो एक और इलीगैलिटी आपने कर दी। ये एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहे हो,
मतलब कितने कानून पाकिस्तान के तोड़ेंगे आप? आपने बात कर दी ना म्यूटेशन कैसे हो रहा है बताएं? हाउसिंग स्कीम्स म्यूटेशन कैसे होते चल रही है ये मुझे बता दीजिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हो रही है। लैंड रेवेन्यू एक्ट मेरी समझ के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड को डील करता है। उस वक्त सर कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर। ओरल सेल को रेफर करके माशाल्लाह जो जवाब मिल रहे हैं ना वो एक नया भी आज है। क्या बात हो रही है? कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर उसको। ये तो आप कह रहे हैं ना मैं इस पे प्लॉट्स डेवलप करूंगा सर क्योंकि खसरा नंबर वाली प्रॉपर्टी थी और उस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब जो उसके बाद जो हो रही है सर वो सारी रजिस्टर्ड से लीड हो रही है। तो मतलब आपने वो भी आपने बचा ली? नहीं सर वो हमने पेमेंट कर दी सारी सर। एग्रीकल्चर लैंड आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं। वेयर इज द परमिशन टू कन्वर्ट लैंड यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल टू अर्बन यूज? वेयर इज दैट नोटिफिकेशन? ये तो आपकी पूरी सोसाइटी इलीगल है। दिखा दें हमें कोई नोटिफिकेशन भाई, क्योंकि डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर लैंड है। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना टू अ डिफरेंट लैंड यूज टू कमर्शियल टू अर्बन। दिखाइए नोटिफिकेशन, दिखाइए जो चार्जेस आपने दिए कन्वर्जन चार्जेस वो कहाँ हैं? इस प्रॉपर्टी पे जो डीएचए को दी फिर डीएचए ने इसको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दे दिया। उस पे कंस्ट्रक्शन हुई तो वो इनको ये अब इनके पास हो सकता है कि कोई अगर इन्होंने आप दोनों साथ खड़े हो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बात कर लो। आपके साथ एग्रीमेंट है इनका, बताते नहीं आपको? नहीं सर हमारे लिए तो प्लॉट आपके लिए तो कानून पाकिस्तान का लागू ही नहीं होता है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमने तो प्लॉट्स के लिए लिया था और लिखा भी यही हुआ है कि इसको कभी कन्वर्शन दिखाए ना। ये आपको बेच रहे हैं लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये आपको बेच रहे हैं फॉर हाउसिंग कमर्शियल यूज। ये थी where is the notification, where is the payment of Land charges that you paid for land was that conversion acquired use? land was acquired for the housing purposes sir, जो हमें मिली जो इन्होंने मर्ज की। पाकिस्तान जो खुद कफील था ना खुराक में अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही सर हैं सोसाइटी ने and totally illegally. Urban land is being converted to commercial and urban use. How? सोसाइटी ने आरडीए को अप्लाई किया हुआ था सारा लेआउट प्लान। इनफैक्ट जरा मुझे दिखाएं। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक इन्होंने 2005 में आए। बना लीजिए एक और रूल्स, जाके शाम को छाप दीजिएगा। सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर पास किया। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम द आरडीए। उसके रूल्स हैं बाकायदा। अच्छा हाँ जी, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2005 थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2010 में आए। दिखाए पढ़े एक्ट बताइए कौन सा है? पंजाब हाउसिंग प्राइवेट रूल्स। मतलब इसमें आपको कोई लिस्ट बताएं कितने कानून आपने खिलाफ वर्जियां की हैं आप लोगों ने? सर हमने खत्म नहीं होगी लिस्ट। जी can you use agricultural land for without going through the conversion process? No, my lord. What are the rules they are saying? Which rules? My lord, वो तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी है, लाइक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो No, but how can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself cannot, into residential, commercial land? How can they do that? they cannot, my lord. Where is the payment of Land charges was- that you paid for land was that conversion acquired use? land was acquired for the housing purposes sir, जो हमें मिली जो इन्होंने मर्ज की। पाकिस्तान जो खुद कफील था ना खुराक में अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही सर हैं सोसाइटी ने and totally illegally. Urban land is being converted to commercial and urban use. How? सोसाइटी ने आरडीए को अप्लाई किया हुआ था सारा लेआउट प्लान। इनफैक्ट जरा मुझे दिखाएं। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक इन्होंने 2005 में आए। बना लीजिए एक और रूल्स, जाके शाम को छाप दीजिएगा। सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर पास किया। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम द आरडीए। उसके रूल्स हैं बाकायदा। अच्छा हाँ जी, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2005 थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2010 में आए। दिखाए पढ़े
एक्ट बताइए कौन सा है? पंजाब हाउसिंग प्राइवेट मतलब इसमें आपको कोई लिस्ट बताएं कितने कानून आपने खिलाफ वर्जियां की हैं आप लोगों ने? सर हमने खत्म नहीं होगी लिस्ट। जी, can you use agricultural land for without going through the conversion process? No, my lord. What are the rules they are saying? Which rules? My lord, वो तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी है, लाइक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो No, but how can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself and not to residential, commercial land? How can they do that? they cannot, my lord. They have to go through a conversion process. Yes, if my lord. Yes. the law allows it. Yes, my If they pay the conversion charges. Because ये तो बहुत महंगे होते हैं। कराची में तो दे रहे हैं। आप ठहर जाइए ना। My lord, initially there is a master plan of every city. ये सिटी की बात नहीं है ना, तो सिटीज तो ये तो उसमें चले गए और उसमें रूरल एरियाज में। उसमें फिर ब्राउन और ग्रीन एरियाज हैं. The green areas cannot be even allowed to be converted for the brown areas for development of societies or for residential purposes. Green will remain green. वो कन्वर्जन का पूरे रूल्स हैं, उसमें अप्लाई करना होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद इजाजत होती है. अब एग्रीकल्चर तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, सब एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, सारी खाली पड़ी हुई हैं। जहाँ पे एग्रीकल्चर है भी माय लॉर्ड, वहाँ पे भी द हाउसिंग स्कीम्स, the influential people of housing scheme, they just intervened and they take over the lands. So where is the government? My lord, हम तो जो Where is the government? जो करना चाह रहे हैं, Agriculture land is a very valuable resource of the people and the state. my lord, हम तो जो अभी कर रहे हैं, अभी आप तो जाओ, पूरा पाकिस्तान एक वो बन गया है, urban sprawl. रिस्ट्रिक्टिव, Who's going to feed the population which is growing? इसीलिए माय लॉर्ड वो ब्राउन और ग्रीन की क्लासिफिकेशन कर रही है. वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट. हम कोई ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट होने नहीं दे.